Hello students, today we are going to start the part 2 statistics. Chapter number 4 limit. We have studied in standard 11 function fx is equal to like 2x plus 1. Now see the if we put x is equal to 1 or substitute the x is equal to 1 in the given function, so f1 is equal to 2x 2 into 1 plus 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. But sum of the function we cannot get the value, and in these situations we have to use the limit. Now see, for example, fx is equal to x square minus 9 divided by x minus 3. For example, at x is equal to 2, f2 is equal to 2 square minus 9 divided by 2 minus 3 is equal to 2 square 4 minus 9 divided by minus 1 is equal to 4 minus 9, so 4 minus 9 is equal to minus 5 divided by minus 1, so the answer is 5. Here we can get the value at x is equal to 4, x is equal to 2 for the given function. Suppose we are putting x is equal to 3 in the given function. Now f3 is equal to 3 square minus 3 9 divided by 3 minus 3. See, the 3 square is a 9 minus 9 divided by 3 minus 3, so 0 divided by 0. So we can say here we cannot get the value, so we can say that at x is equal to 3 the fx is indeterminate. At x is equal to 3 fx is indeterminate. So in this case we have to use the लिमिट. इन केस में, इसी केस में हमें मीन्स यानी कि लिमिट यूज़ करना है. जहाँ पे इनडिटर्मिनेंट हो, वैल्यू मीन्स हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस केस वी यूज द लिमिट. नाउ हियर you can see in your textbook one examples or some pictures are given. At the 14 minutes the screen is buffering, so what happens, we are considering at 13 minute and 58 second the position of the players, and then after 13 minute and 59 second the position of the players, and reducing the seconds at 14 minutes or 2 seconds the position of the players, at 14 minutes and 1 second the position of the players, and we can make the imagine, we can make the approximate value, not exact value, but we can find the approximate value where the value for the function is indeterminate. जैसे यहाँ पे हम मीन्स कुछ डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ लो कि वैल्यू मीन्स जो है फॉर एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल के मैं चलो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नंबर लाइन में यहाँ पे समझ लो कि 3 है, तो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं कि मीन्स यहाँ पे मीन्स हम नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं एंड इट्स अप्रोच इज टू 3, और यहाँ पे नंबर्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं और इट्स अप्रोच इज टू 3. इट मीन्स इट्स टेंड्स टू 3 और ये भी इट्स टेंड्स टू 3. उसकी वैल्यू रिड्यूस करते करते हम 3 के नियरर ले रहे हैं, और यहाँ से वैल्यू डिक्रीज करते करते हम क्या कर रहे हैं, 3 से नियरर वैल्यू ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे मैं मीन्स 3.1 ले रहा हूँ, और नियरर वैल्यू हो जाएगी 3.01, और नियरर हो रही है 0.01, और नियरर वैल्यू 0.0001. We can say approximately it's a 3 but not exact 3. In the same way, reducing the value and its approach is to 3. For example, 2.9, 2.99, 2.999, 2.12349, it shows the approximate 3, that is called it stands to 3 but not exact 3. देखो ये सभी वैल्यू मीन्स जितनी भी है मीन्स we decreasing the value or its approach is to 3, and here we decreasing the value, here we increasing the value and its approach is to 3. It means it's going nearer to 3 but not exact 3. So we can find the value for 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001, and the same way we can find the value at 2.9, 2.99, 2.999. But for exact at x is equal to 3, it is not possible. So that shows the limit of the function. So we can say that it's a limit, not a fx, it's not function, but we can find the limit x tends to 3. that means उसका मीनिंग अब हमें समझना है. लिमिट x approaches 3, लिमिट x tends to 3 मतलब the value of x is nearer to 3, value of x is nearer to 3 but not exact 3, and the function value then fx function is equal to x square minus 9 divided by x minus 3. Find the value with the help of limit. So we can say it's a limit x tends to 3, it means x approaches to 3, x की वैल्यू 3 के नियरर है बट एग्जैक्ट 3 नहीं है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3. तो ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर कैसे फाइंड करना है, वो मीन्स हमें चेक करना है लिमिट की हेल्प से, और अप्रोच इज लिमिट के मीन्स जो है वो लिमिट के अप्रोच हमें चेक करने हैं. So seeing 2 or 3 examples of this we can make the clear, and before that we will learn some terms of the limit. See, the first is the real line and its interval. Real line and its interval, and its interval. So first we'll discuss the real line. First we discuss the real line. What is real line, क्या है वो डिस्कस कर लें. तो द रियल लाइन और द रियल नंबर लाइन इज अ लाइन वेयर रियल लाइन और रियल नंबर real number line where its points are the real number, where its point are real number. So we know very well the real line or the real number lines where its points are real number. किसी भी real number उसके जो points है ये line पर, और जो भी points means line पर आने वाले, it shows the real number means वो real number show कर रहे हैं.
तो दैट इज कॉल्ड अ रियल लाइन. नाउ इट्स इंटरवल. तो इंटरवल्स वी नो वेरी वेल. इंटरवल मीन्स एक लिमिट, मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है. जैसे कि क्लास इंटरवल होता है 5 to 10, ऐसे एक इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरवल. नाउ सी द अ सेट और a set of real number, a set of real number between any two real number, between any two real number, a set of real number बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, यानी किसी भी टू रियल नंबर्स के बीच का सेट. लाइक ए रियल नंबर ए है और दूसरा रियल नंबर बी है, तो ये टू रियल नंबर्स के बीच में मीन्स हमें पता है कि इन्फिनिट नंबर्स होते हैं. ए और बी के बीच के मीन्स एनी वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रियल नंबर. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स between any two real numbers is an interval, is an interval. And we shall study the different type of intervals. discuss करते हैं. तो it is the interval. interval means क्या है? तो again a set of real number, a set of, एक पूरा सेट है, a set of real number बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, किसी भी टू रियल नंबर्स के बीच में मीन्स जो रियल नंबर का सेट है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरवल. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरवल, विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल. टाइप्स ऑफ इंटरवल. तो टाइप्स ऑफ इंटरवल में फर्स्ट है क्लोज इंटरवल. closed interval, closed interval. तो क्लोज इंटरवल क्या है वो अच्छे से समझ रहे थे. अगेन इंटरवल का नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी इंटरवल यानी कि टू रियल नंबर, द सेट ऑफ टू रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, किसी भी टू रियल नंबर्स के बीच में मीन्स यानी जितने भी रियल नंबर्स है उसका सेट, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल. सो इफ ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स जो ए हमारा मीन्स है वो रियल नंबर होना चाहिए, यानी मेंबर होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, यानी A is the member of real numbers. B is the belongs to R, B also the member of real number, and A is less than B. The A is less than B. A की वैल्यू मीन्स क्या होनी चाहिए? B से लेस होनी चाहिए. Then the set of all real number, then the set of all real number, then the set of all real number between A and B, ऑल द इंटरवल, जितने भी टाइप्स ऑफ इंटरवल है उसमें ये पॉइंट सेम रहने वाला है. इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी. हर एक डेफिनेशन में इतना पॉइंट सेम है. अब जिस जो चेंज है वो देखना है हमें माइंड में. ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग A and B is called a closed interval, is called a closed interval.
and it is denoted by ये ब्रैकेट में जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्लोज इंटरवल ए एंड बी। क्लोज इंटरवल का मीनिंग अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे जो मीन्स ए और बी मेंशन किए हैं, इट्स ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट इंटरवल। वो इंटरवल के ये दोनों मीन्स वैल्यू इंटरवल में इंक्लूडिंग है, यानी कि दोनों वैल्यू को हमें इंक्लूड करना है। तो अगेन एक बार समझ लो, बाकी सभी इंटरवल सेम है। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो है ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, then the set of all the real numbers, then set of all the real numbers between a and b, set of all real numbers between a and b, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है चेंजेस टाइप्स ऑफ इंटरवल, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ए एंड बी दोनों को उसमें इंक्लूड कर रहा है, दैट मीन्स उसी सेट में इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल, इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय द ए एंड बी। और इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना हो तो ए इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है ए बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल एक्स, यानी कि ए को उसमें कंसिडर करना है, जो एक्स मीन्स है हमारा सेट उसमें, और लेस और इक्वल बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो द सेट ऑफ x is such that a is less or equal x, less or equal b and x belongs to r। तो x means r का member है, x is the member of real numbers and it's equal to a and b or include a and b both, that is called a closed interval। Now same way we can discuss the open interval, second number ओपन इंटरवल। तो अगेन मैंने मीन्स आगे डिस्कस किया है कि मीन्स बिटवीन ए एंड बी तक तो सेम होने वाला है, चाहे मीन्स कोई जो भी लिखेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड a is less than b, a की वैल्यू मीन्स क्या है, लेस देन, then the set of all the real numbers, then the set of all the real number, then set of all the real number between a and b numbers between a and b, यहाँ तक सभी में कॉमन है। अब मीन्स इंटरवल से हमें पता चला एक ओपन इंटरवल का मीनिंग है कि मीन्स दोनों वैल्यू मीन्स कंसिडर हम नहीं करेंगे, बट बिटवीन ऑल, तो नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एंड a and b not including a and b, a and b is called open interval, and it is denoted by स्मॉल ब्रैकेट से उसको डिनोट कर रहे हैं, उसे बिग ब्रैकेट से कर रहे थे, तो इसका मीनिंग हो रहा है कि ए एंड बी आर नॉट द मेंबर ऑफ सेट, यानी वो मेंबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड in notation form we can write a b is equal to x is such that a is less than x less than b or x belongs to r।
Now, third one. Now see the third one. Closed open interval. Closed open interval. Closed open interval. तो दैट्स वेरी सिंपल. अब यहाँ से आगे जो मीन्स हमने टू इंटरवल डिस्कस किए उसी से ये पता चलना चाहिए. क्लोज्ड दैट मीन्स इंक्लूडेड एंड ओपन एट मीन्स नॉट इंक्लूडेड. तो बाकी तो सेम टू सेम डेफिनेशंस में ये सब चेंज नहीं होने वाला. जैसे इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड इज लेस देन बी, देन दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, वो तो सेम रहने वाला है. इफ ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर and a is less than b, then set of all real number, set of all the real numbers between a and b, between a and b, ये सेम है. यहाँ से चेंज होने वाला है बिटवीन ए एंड बी. अब मीन्स इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग